हेलो एंड वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। माई सेल्फ सरस्वती। और आज मैं सिखाने जा रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स का ही एक पार्ट, एल्केन्स और उसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहले के क्लासेस में हमने हाइड्रोकार्बन्स जाना था, है कि नहीं? फिर एल्केन्स के बारे में भी थोड़ा जाना, एल्केन्स, एल्काइंस, रफली हमने एक आइडिया लिया था। अभी हम थ्रू डीप हम डेवलप करेंगे। ठीक है, एल्केन्स एंड इट्स नोमेनक्लेचर। तो व्हाट आर एल्केन्स स्टूडेंट्स? What are alkanes? Alkanes are the saturated compounds. Saturated means, yes students, saturated means single bonds are present only. In case of alkanes, only single bonds are present. Okay, only single bonds are present. So students, that means alkanes are those hydrocarbons which contains single bonds in it. That is, carbon can form only single bonds with other carbon or hydrogen. Got it? Carbon can form only single bonds with other atoms. For example, if you take an example of one carbon species, that is methane. So this can form only single bonds. Since it is a saturated compound, so it will form only single bonds. So if only single bonds are present, and you see this carbon atom is surrounded by 4 hydrogen atoms. So what will be its hybridization, students? I have taught you hybridization before. So yes, you can say, answer. What will be its hybridization? sp3. Yes, sp3. Got it, students? So hybridization will be sp3. For example, if you take another compound of alkane, ethane. So since it is carbon needs to be stabilized by, because carbon is a tetravalent compound, right or not? Carbon should have tetravalency. So one bond has formed with another carbon atom, so 3 hydrogen will be there to stabilize to fulfill its tetravalency, right or not? Similarly with this carbon too. This is what? An ethane molecule. Ethane molecule, right or not? See, 6 hydrogens and 2 carbon atoms, but all these atoms, both the carbon atoms have formed single bonds with the other atoms, right or not? So this is a saturated compound. Alkanes are saturated compounds. Okay students, only single bonds are present. So let's see, alkanes, homologous series. Homo means same series. You say, I have added one table. Here I have written methane. If the carbon number is 1, its formula is CH4. General formula. How will you know this? General formula of alkanes. Is CnH twice n plus 2. This is the general formula of alkanes. So when n equals to 1, n means number of carbon atoms. N means number of carbon atoms. Got it, students? If n equals to 1, that means 1 carbon. N equals to 1 carbon, right? Cn. H twice n, that means hydrogen, number of hydrogens will be
Let me place 1. So let's calculate. C1 H 2 into 1, 2 plus 2, 4. That means how many? CH4. Got it, students? How to calculate? How will you identify this compound? By this formula, CnH twice n plus 2. This formula of alkane will help you to understand the formation of this compound. This is the formula. So when n equals to 1, the compound will be methane. This is the structure. CH3, C, that means carbon and 4 hydrogen, methane. If n is equals to 2, what will be the compound? C2H6, ethane. The structure is provided here, you can see. Propane, if n equals to 3, the alkane is propane and formula is C3H8. If n equals to 4, butane, n equals to 5, pentane, and so on. And so on. Number of carbon increases and chain also increases. Okay, students? So you just need to keep in mind this formula, CnH twice n plus 2, alkane formula. Okay, students? Now, alkanes IUPAC nomenclature. Nomenclature means naming. A compound like जैसे कि एक इंसान को हम नाम से जान सकते हैं, एक इंसान का निकनेम भी होता है और फिर ऑफिशियल नेम भी होता है. ऑफिशियल नेम हम जब बाहर जाते हैं तब हमें ऑफिशियल नाम से पुकारा जाता है कि नहीं. निकनेम कब पुकारा जाता है? घर पे या फिर कोई हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे क्लोज वंस जो हमें बुलाते हैं निकनेम से. तो दो तरह का नाम है. यहाँ पे भी इन सारे कंपाउंड्स का, एल्केन्स का भी दो तरह का नाम है. एक है कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम. कॉमन नेम है निकनेम, ठीक है. IUPAC नेम है ऑफिशियल नेम. ठीक है स्टूडेंट्स. IUPAC का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसी के थ्रू एक कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं उनका. ठीक है. कॉमन नेम को हम निक नेम बोलते हैं, IUPAC नेम है हमारा ऑफिशियल नेम. तो पहले हम कौन कौन से एल्केन्स का देखिए, कितने सारे टाइप से जहाँ पे हम नेम करेंगे कंपाउंड्स का. पहला क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप का एब्सेंस में जो हम नामकरण करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, और वो है एक स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट, उसमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिफेटिक मतलब चेन वाला हाइड्रोकार्बन चेन. ठीक है, स्ट्रेट. तो वो है पहला वाला नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के एब्सेंस में नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे. नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप बट ब्रांच्ड. यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप का एब्सेंस है, लेकिन पहले वाले में स्ट्रेट था, यहाँ पे हमें ब्रांच्ड एल्केन्स भी मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप. पहले के दो केसेस में हम स्टडी करेंगे विदाउट फंक्शनल ग्रुप, जो कि स्ट्रेट और ब्रांच्ड मिलेगा हमें. नेक्स्ट वाले में हमें मिलेगा विथ फंक्शनल ग्रुप. अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका हम नामकरण कैसे करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन वन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स. मोर देन वन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. अगर सेम हुआ तो हम कैसे उसका नामकरण करेंगे वो भी हम जानेंगे. नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सेम हुआ तो नाम अलग होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ तो भी नाम अलग होगा, वो भी हम सीखेंगे. नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कंप्लीटली साइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक. ठीक है. जैसे कि आप पकड़ सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोपेंटेन. ठीक है. इसमें
एलिसाइक्लिक क्यों बोला है? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, इसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स नहीं है कि नहीं? तो ये इसका भी हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, जो कि स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है वर्ड रूट दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस सफिक्स सैचुरेशन, ठीक है। अभी सैचुरेशन में हम क्या सीखेंगे? देखिए, ये तो एक टेबल है, दूसरा टेबल में ठीक है क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम पकड़ लेते हैं और फिर सफिक्स पकड़ लेते हैं। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ तो क्या वो सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सिंगल, यस। सिंगल बॉन्ड होने से हम सफिक्स में क्या लिखेंगे? एन। वर्ड रूट के साथ, मतलब कार्बन एटम्स का जितना भी नंबर होगा बाद में हम लास्ट में ऐड करेंगे। सफिक्स मतलब पीछे जो ऐड होता है, प्रीफिक्स प्री आगे, सफिक्स पीछे, ठीक है। प्री मतलब आगे, वो आगे होता है, सफिक्स पीछे लगता है, ठीक है। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में हमें सफिक्स में एन मिलेगा। अनसैचुरेटेड में दो चीजें होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड हुआ तो क्या बनेगा? इन, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हुआ तो इन, लास्ट में सफिक्स के हिसाब से इन लगेगा। अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, एल्केन्स के ही पार्ट है, लेकिन सारी चीजें सफिक्स में तीन तरह के सफिक्स लगेंगे, एन, इन और आइन। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हुआ, अगर कार्बन एटम 1 हुआ तो क्या होगा? मिथ। 2 हुआ इथ, 3 हुआ प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से उनका नाम भी अलग है, जितने कार्बन्स बनेंगे उनका नाम भी अलग होगा। जैसे कि एक कार्बन के लिए हम उसे बोलेंगे मिथ, सफिक्स सेट करके क्या होगा? एन, अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। तो चलिए हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। पकड़ लेते हैं एक कार्बन चेन, ठीक है। अभी इनको हम टेट्रावैलेंसी देंगे क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सिर्फ ये बॉन्ड दे दूँ तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं है मतलब इधर एक हाइड्रोजन है इसका टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए, हमने ये एक स्ट्रेट चेन पकड़ लिया है। क्या इधर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं? सैचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड्स है, सारे कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड्स का प्रेजेंस है, ठीक है सर, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इधर सारे सिंगल बॉन्ड्स है। अभी हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम्स है? 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम्स होता है तो क्या होता है? ब्यूट, क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो सफिक्स में क्या आएगा? एन, ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन, इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? अगर कार्बन चेन स्ट्रेट है और फिर सिंगल बॉन्ड है तो वो हम आपका कार्बन का नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग के हिसाब से जितने कार्बन एटम्स हुए उस हिसाब से हम वर्ड रूट जो भी बोलिए, वर्ड रूट या रूट वर्ड, हम उसको दे देंगे। फिर सफिक्स में हमें देखना पड़ेगा कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, फिर हम सफिक्स सेट कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। अभी एक कंपाउंड पकड़ लेते हैं, एक कंपाउंड सपोज हम पकड़ लेते हैं ठीक है, सारे कार्बन्स का टेट्रावैलेंट से मेंटेन हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम्स है? ब्यूट, तो हम लिख लेंगे ब्यूट। अभी इधर एक डबल बॉन्ड है, मतलब वन सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या ऐड करेंगे सफिक्स में? इन ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपने देख लिया कि इसका नाम ब्यूटीन बन गया, ब्यूटीन बन गया। एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड दोनों अनसैचुरेटेड है, इसका नाम क्या बनेगा? हम नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4, सेम ब्यूट। इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इन ब्यूटेन। सवाल यह है, क्या दोनों कंपाउंड सेम है? क्या दोनों कंपाउंड सेम है? जी नहीं, दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। हालांकि उसके पास कार्बन एटम्स है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दोनों ही ब्यूट कंपाउंड है, लेकिन दोनों ब्यूटेन नहीं है। माइंड इट, दोनों ब्यूटेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन अभी हमें चेक करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में है? कार्बन नंबर 1 में है, कार्बन नंबर 1 में है। जहाँ पे डबल बॉन्ड का स्टार्टिंग होगा वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी वहाँ से देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो हमें इतना ध्यान देने की इधर ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करना है और डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है। कौन से कार्बन में है स्टूडेंट्स? ये कार्बन 1 में है, मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 में है, तो हम इसको ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं या फिर ब्यूटिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटिन या फिर ब्यूट 1 इन एक ही बात है। लेकिन अगर कार्बन मतलब कार्बन 1 में हुआ तो हम उसको ब्यूटिन लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसका पोजीशन 1 ना हो के 2 हुआ, 3 हुआ या फिर अलग पोजीशन हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका कार्बन 2 में है, कार्बन 2 में डबल बॉन्ड है, तो इसका ब्यूट 2 इन। गॉट इट स्टूडेंट्स? कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 में है, तो इसीलिए हमने लिखा ब्यूट। जितने कार्बन्स हैं ब्यूट 2, क्योंकि सेकेंड कार्बन में है, इसीलिए ब्यूट 2 इन। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके। ट्रिपल बॉन्ड अगर हुआ, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ एक चेन में, तो हम कैसे उसका नोमेनक्लेचर करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे, है कि नहीं? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे तो ब्रांच्ड चेन्स नहीं है या फिर ब्रांचेस नहीं है ना, तो हम यहाँ पे कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, एक ही बात है। 4 कार्बन मतलब ब्यूट। गॉट इट स्टूडेंट्स? 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। फिर हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड है कि नहीं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सबसे लोएस्ट नंबर पे आना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम सेकंड वाला कैलकुलेशन, सेकंड वाला नंबरिंग देखेंगे। तो वहाँ पे देखिए कार्बन का पोजीशन 1, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, ब्यूट 1 अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो फिर क्या होगा, वो आइन, ब्यूट 1 आइन, या फिर 1 हुआ तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल पे देखिए, उसका पोजीशन अलग था ट्रिपल बॉन्ड का, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इस साइड से भी हम करके देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। दोनों ही पोजीशन में सेम ही चीज़ है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये पोजीशन 2 में आता है, यहाँ पे भी 2 पे आता है, जहाँ से भी करें, जिस साइड से भी करें पोजीशन 2 में ही ट्रिपल बॉन्ड आता है कि नहीं। तो काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लिया हमने, देखा कि कितने कार्बन से, ब्यूट 4 कार्बन से है, इसीलिए ब्यूट। अभी हम ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे, कार्बन नंबर 2 में है, ब्यूट 2 आइन। हमेशा कम नंबर वाले कार्बन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड या फिर बॉन्ड का पोजीशन या फिर जो भी हो ब्रांचेस का पोजीशन हमेशा लोएस्ट नंबरिंग में आना चाहिए, ठीक है। ब्यूट 2 आइन, गॉट इट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने सीखा था, पहले क्या सीखा, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ, सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ तो वर्ड रूट के साथ सफिक्स में हम एन ऐड करेंगे। फिर अगर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हुआ तो वर्ड रूट के साथ हम इन ऐड करेंगे, और डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना भी ज़रूरी है, तो पोजीशन भी हम बाद में लिखेंगे, वर्ड रूट फिर पोजीशन फिर सफिक्स, है कि नहीं। फिर अनसैचुरेटेड में हमने ट्रिपल बॉन्ड में देखा, आयन वाला भी कंपाउंड हमने लिया, उसमें भी हमने वर्ड रूट पहले डिटरमाइन किया कितने कार्बन्स है, फिर वर्ड रूट उस हिसाब से दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड का भी हमने पोजीशन देखा, पोजीशन देख के फिर हमने नोमेनक्लेचर दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज पहला वाला जो है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, मतलब स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन अगर हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, हमने आज वो सीखा विदाउट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें सीखेंगे, तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए और समझ लीजिए और खुद से भी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।